Assalamu alaikum, Muzna. Thank you so much for joining the session. Welcome, Salam Umair. Thank you so much for having me. I think this Uh, is long due. this is very very long due, but I think कभी कभार मैं busy होता था, कभी आप busy होते थे. Time manage करना बहुत मुश्किल होता है because when you are working in different time zones and different career pathway, तो कब आपको टाइमिंग के हिसाब से आगे पीछे करना पड़ता है. But I'm happy that we are having this today, and Yeah, I do appreciate there is a your lot. patience as well. नहीं I really wanted to do it because what I really wanted to have a discussion on, because there's a lot of debates going around कि how Gen Zs are growing and this and that, and I think it's very important to understand कि what's their point of view, what's your point of view. ठीक है, आप लोग किस तरीके से चीजें कह रहे हैं. मार्केटिंग, डिजिटल, ये सारी चीजें वो है जो कि अब से रिक्वायरमेंट नहीं, अब से नेसेसिटी है. ठीक है, पहले अगर मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूं तो लोग कहते थे कि यार एआई आएगा. नाउ डेज एआई इज हेयर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट in a right way. Before we start discussing about your career path for everything, I'll be happy if you can introduce yourself. How's life? How's everything? And then we'll start the session. Sure. So my name is Muzna. I'm currently working at Tenpils as a senior marketing executive, and I'm also continuing my education. So I'm doing my MBA from IBA right now, and this is. So far about me. I've previously also worked in marketing agencies and different sort of setups. I have overall 5 years of working experience, and in my university, I also co-founded a travel company with my friends, and yes, a clothing brand as well. Like everybody just does that. You have to do Fine. something with your best friend, so that's Yes. what we did as well. Back then, but it was cool. Also, it was a great learning experience as well. That really helped me in my corporate life. So Perfect. that's Perfect. I think you are a proper Gen Z, तो I'm pretty much sure आप 25 or 25 से छोटे ही होगे, और उसके बाद having a 5 years of experience and also to understand, ये बात बिल्कुल ठीक है कि when we are in universities, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई वो चीज़ होती है कि यार हमें ये चीज़ start करनी है. And I think it's a very good initiative that gives you an idea of team effort, टीम बिल्डिंग किस तरीके से होती है, मैनेजमेंट किस तरीके से होती है. एंड आई डोंट सी इट कि वो चले ना चले या वो कितना आगे चल रहा है या आप आगे उसको कंटिन्यू कर सके या ना कर सके, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू रियलाइज कि ओके फाइन, वी आर डूइंग समथिंग ऑन आवर ओन. ठीक है. Yeah. I mean, it was a big thing for us. Like, we did break even with our first collection. So I think, you know, uh, we were learning stuff, obviously. So actually implementing those sort of learning experiences that we had in our class and everything in the projects that we did, the way sort of cheese materialize ho gayi thi. So it was actually a good learning experience for us as well, फेयर इनफ. right? फेयर इनफ. अच्छा चलें जी, हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट करियर ग्रोथ या करियर काउंसलिंग या करियर अप्रोच, जिस तरीके से आप पॉजिटिवली कह रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कह लिया दुनिया के अंदर, बैचलर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. ठीक है, बिकॉज अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूं कि पाकिस्तान लड़कियां, तो बैचलर्स वो वाहिद एक डिग्री होती है जिसमें आपको पहली मर्तबा एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री का, आप लोगों से मिलते हैं. बिकॉज वी इन पाकिस्तान आर वेरी सिक्योर्ड. हम अपनी बेटियों को और अपनी लड़कियों को बड़ा सिक्योर रखते हैं, और उससे पहले आप जो भी डिसीजन मेकिंग या कर रहे होते हैं वो ठीक है, बट एक्सपोजर इतना नहीं होता. एक्सपोजर आपको हमेशा जो है आपके बैचलर्स में मिलता है. ठीक है. यू एनरोल योर सेल्फ इन 2016 एंड यू ग्रेजुएटेड इन 2020. ठीक है. Why do you think BBA was the right fit? ठीक है. Because a lot of time, I personally believe from 2013, 2014 till 2020, 18 या 17 तक BBA की एक वाइब थी पाकिस्तान में, and everyone is doing BBA. मेरे आधे खानदान ने उसे एरा में बीबीए करा हुआ है. ठीक है. सो व्हाई डू यू थिंक कि वो टाइम पे आपको बीबीए करना था? बिकॉज व्हाट आई सी इज पाकिस्तान में बैचलर्स का फैसला कुछ पॉइंटर्स पे होता है. या तो आपके चाचे मामा के किसी बेटे ने वो चीज़ करी, वो जो कि बहुत पैसे कमा रहा हो. ठीक है. या तो आपको बहुत पैशन हो उस चीज़ का. ठीक है. अम, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं, क्योंकि 2016 आवर पेरेंट्स डोंट हैव दैट मच एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट. ठीक है. तो उनको दो तीन चीज़ें ही पता थी, भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बिजनेस में कुछ कर लो. बट what was your thought process when you were taking admission in BBA?
Okay, so I'll just get started. Honestly, I don't want to sound like this guru or something, but there was no thought process, to be very honest. I just got graduated from college. I was a normal 15-year-old uh, teenager, and I was like, I have to do something. I really want to push myself. And even though I just knew this thing for a fact that I don't want to do a medical degree. So Mm, that was one thing for sure. And then I was like, what's next, right? So you explore different things, you see what your friends are doing, and that's what I did. I just went with the flow. I think so BBA just happened like that. But when I entered it, then I realized, is this something I actually want to do? And the answer was yes, because it was according to me. And so I graduated from Ikra University, and there was no major over there. We did BBA honors, right? So we had like a lot of different domains that we studied, mm. so like supply chain, marketing, finance, accounts, and HR. So, I could actually, because after studying all of that, I could actually see what I can pick and choose, right? And that's what I did. So, further on, when we had like in last semester, we had to choose electives. So, I went for marketing, and that's what I did my things in as well, like my startup with my friends. And so marketing really helped me in that, and I think that's the career path I chose. So I think if BBA wouldn't have happened, I wouldn't have known, like, that I have to choose this. So that is one thing. I think to main gayi thi कि, I'll go with the flow, but when the flow actually happened, I figured out stuff, and I think that's what I did on the go. So there's no rocket Agree, science behind it, but it's just like something that happened. agree on the point, because what I personally believe is that not every person work on the same way. ठीक है? I personally believe that there, and it's not. Sometimes we always blame things on career counseling. ठीक है? Life is different for everyone. ठीक है? You had started and आप वैसे ही थोड़ा सा अपने करियर पाथवे में थोड़ी अर्ली स्टेजेस पे थे, तो आपने कहा कि ठीक है यार, आई डोंट वांटेड टू वेस्ट माय थिंग एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स. ठीक है? आई जस्ट सी, ओके फाइन, people are doing this, let's jump into this and start doing it. And also यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छी चीज ये होती है, यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है. ठीक है? एंड आई डोंट नेम इट कि वो इकरा हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऑल लो कि मैंने भी इकरा से ही पढ़ा है और मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है लोग क्या कहते हैं. इट्स जस्ट अबाउट कि आप किस किस गैदरिंग और किस कंपनी का हिस्सा है. ठीक है? True. इफ यू मेक योर सराउंडिंग अ वेरी गुड सराउंडिंग, तो आपको वो भी अच्छी लगती है. और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी, yes, university to university, it's a very big leap in Pakistan specifically, क्योंकि जब In आप एक Pakistan, in yes. Pakistan, because yes, उसमें आपकी um, बहुत अलग तरीके के लोग होते हैं, मेंटालिटी चेंज हो जाती है. आई पर्सनली बिलीव कि हमेशा इन्वेस्ट जरूर उस चीज में करना चाहिए जिसमें आपकी ग्रोथ हो, बिकॉज 4 साल इज नॉट ओनली अबाउट टेकिंग अ डिग्री. बिकॉज एट वन स्टेज इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसमें आपका नाम लिखा हुआ होगा, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, और वो उससे ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा होगा अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे और अगर आपको जॉब मिल गई है. ठीक है? वो फिर एक कैबिनेट के साइड में रखा हुआ होगा. बट यू नीड टू रियलाइज कि 4 साल में आप प्लान करके जाएं, अनप्लान करके जाएं, हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो 4 साल शुड बी वेरी मच इंटेंसिटी के साथ आप पढ़ें, लोगों से मिलें, अपने पीआर को बेहतर करें जितना कुछ कर सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि वो आगे किस तरीके से काम करेगा. तो आई टोटली अंडरस्टैंड यू गॉट इनटू के सही फ्लो में चल रही थी. मैं हर किसी के साथ 2016 में एडमिशन लिया, लड़की होने के नाते 4 साल के अंदर एग्जैक्ट ग्रेजुएट कर लिया. ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ जैसे लोग भी होते हैं जिनको 6 6 7 7 साल लग जाते हैं, बट आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, तो आपने 4 साल में ग्रेजुएट करा. अच्छा, आई पर्सनली बिलीव यूनिवर्सिटी जाना इज द वेरी वेरी अर्ली और इजिएस्ट स्टेप. ठीक है? रियलिटी चेक तब होता है जब आप बैचलर्स कर लेते हैं. ठीक है? Exactly. क्योंकि आप उस बबल में रहते हैं कि अम, सबके नंबर तो ले लिए, सीजीपीएस और ये जितना भी फैंसी चीज है ना, क्योंकि आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जो आपको रियलिटी चेक देती हैं, या बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो उस टाइम फ्रेम में काम कर रहे होते हैं. जो काम Hmm. कर रहे होते हैं उनको तो पता चल जाता है कि भाई ये जो चीज है ना एक दिन खत्म हो जाएगी. और आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, देख सकते हैं वो बच्चे जो काम कर रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ, और वो बच्चे जो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं. So there is a very different mindset and thought process into it. So Yeah. you graduated in 2020. How We was the did. how was the reality check? Because
व्हाट आई सी इज के व्हेन यू 2020 की बात करते हैं तो 2020 इज नॉट ओनली अबाउट कोविड, इट्स ऑल्सो अबाउट कि ऐसा नहीं है कि आप पैशनेट थे उस फील्ड के अंदर, कि आपको अपने अगले 10 साल का प्लान पता हुआ। वट एवर यू लर्न ऑन दोज 4 years, ठीक है। और आपके ऊपर है कि आप उसमें सही भी सीख सकते हैं, आप उसमें गलत भी सीख सकते हैं, आप उसमें अच्छा भी सीख सकते हैं, आप बुरा भी सीख सकते हैं, बट वो 4 साल ही। तो एक तो आप ग्रेजुएट हुए तो पीक का कोविड चल रहा था, ठीक है, कम पाकिस्तान में वैसी नौकरियां नहीं होती हैं और आपके टाइम में और नहीं थी। हाउ डू यू सी दिस रियलिटी चेक, अगर अभी की मुजना उस टाइम की मुजना 5 साल की पहले की मुजना को बोलेंगे यार कि आपको ये पॉइंटर्स करने चाहिए ग्रेजुएशन से पहले, ताकि ग्रेजुएशन के फौरन बाद आपको रियलिटी चेक मिले लेकिन आप उसको संभल सको या उसमें चीजें देख सको, तो व्हाट शुड बी द 5 pointers? Hmm. Oh, that's cool. So first thing because I was actually very introverted, so I didn't really talk to a lot of people or made friends like that, like people do. So I think that should be the first thing, like you should do. You should be very in societies and stuff like that, because this is very important. It sets the pace for the next years as well, right? Mm, So not everybody can figure out their path later on, or not everybody is lucky enough to have that. So I think for all the students, it should be the first thing that they should be actively participating in societies and just getting to know other people as well. Even though, like, when you're an introvert, it's very difficult, and I do understand that. But कुछ ना कुछ आपको किसी extent पे आपको करना चाहिए. So this is the mm. first thing. And second thing is, I feel that you should do internships. This is a must. Like, you should do as many internships as possible, because you get the flavor of the corporate world in your degree. And when you actually are studying as well, you can relate things to the practicality and of what the textbook is teaching you. So it's just that. तो ये दोनों चीजें तो मुझे लगता है they're very important. And yes, building your own personal brand, I think people should get started younger and earlier in their career. So I was just like recently pushing my sister to, build her LinkedIn profile and like start posting, because whatever she's studying, she can actually share that. And everybody is different. Everybody has their own identity. तो वो तो एक चीज ऐसी नहीं है ना कि if someone else is doing it, you can't do it, right? You have your own personal brand, you have your own identity. So I think these three things are very important, एंड according to me. Like, आई थिंक ये तीन चीजें इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि आई डोंट से इट कि यार हर बंदे को फोर्स करनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो एक्सपीरियंस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज hmm, वट एवर यू एक्सपीरियंस वो आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करता है, ठीक है। होपफुली अगर आपकी चीज़ें बहुत आसान तरीके से होती हैं, आपको हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल रही होती, तो मे बी योर पर्सपेक्टिव चेंज, बट आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज वेयर एक्सपीरियंस केम इन। whenever I'm talking to anyone, बेशक वो जेनजी हो, मिलेनियल हो, अल्फा हो, ठीक है, आई वांटेड टू नो कि यार एवरीवन विल गोना टीच यू समथिंग। अगर आप चाहते हैं उनसे कुछ सीखना तो आप सीख सकते हैं। और आई थिंक एक्सपीरियंस इज मोर देन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन आपको बेस लाइन सिखाती है, एक्सपीरियंस आपको रियलिटी चेक देता है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो चीज़ आप कह रहे हो अभी, वो अगर आप अभी कर वो आप उस टाइम पे भी कर लेते तो शायद और बेहतर होता, क्योंकि hmm, यूनिवर्सिटी एक स्टेंसिल है, ठीक है। जब बच्चे निकलते हैं तो सारे के सारे सेम ग्रेड पे बाहर आते हैं। ग्रेड मतलब आई एम नॉट सेइंग ग्रेड मतलब पोजीशन, आई एम ग्रेड मतलब कि हर किसी का बीबीए ही है, सब किसी का आगे बीबीए लगा है। हाउ यू गोना डिफरेंशिएट योरसेल्फ, लोग yeah, ये नहीं बता पाते that's कि यार, important. क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि वंस यू गो इनटू द मार्केट, आपके अलावा भी 40 लोग हैं जो बीबीए करके आ रहे हैं। व्हाई एंड व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन यू दैट पीपल शुड हायर यू rather than someone else, ठीक है। True, that's true. And I think what really helped me was this one thing that I was also like, in my last 2 years, I was volunteering with this NGO as well. So I made that thing as a part of my personality as well. And it really helped me grow because I was talking to different people. So I think that's also important. Like, you should have something that connects you with your purpose as well, because this actually shaped me in my bachelor's as well. And later on, when I, when I You should gathered connect. experience. I personally believe you should connect with any third party thing that giving you a leverage of going outside the box a bit, ठीक है। A lot of time people see कि यार they don't understand how this NGO thing will work in my life, because मैं इनिशियली कहीं ना कभी तो प्रोफेशनली इन्वायरमेंट में चले जाऊंगा, फिर मैं ये एक्सपीरियंस किस तरीके से शेयर कर सकता हूँ, बट यू नेवर नो
आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख रहे होते हैं जो आपको नहीं पता होती, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात कैसे करनी है, कनेक्ट कैसे True. करना है। एंड यू नेवर नो, मे बी दो अलग पोल्स के लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हो, एंड वंस यू स्टार्ट नोइंग देम, आफ्टर आफ्टर अ व्हाइल यू अंडरस्टैंड कि ओके यार ये मेरे काम आ सकता है। एंड आई थिंक नेटवर्किंग या कनेक्शन बिल्डिंग इसी को कहते थे। Yes. एंड मैं अभी भी कहता हूँ कि यस, आपको ज़रूरी है कि आपकी कनेक्शन बिल्डिंग होनी चाहिए, वर्चुअली भी है तो गुड है, बट ट्राई टू like convert it into physical और practical one on one connection building, ठीक है? क्योंकि what I see is कि when you connect with someone, ठीक है, आप अपना कुछ ना कुछ पार्ट उसमें छोड़ देते हो और उसका कुछ ना कुछ पार्ट ले लेते हो, ठीक है? Maybe you meet anyone in any keynote session or speaker session or any expos, you don't know कि वो आपको क्या चीज़ सिखा सकते हैं, आप उनसे क्या चीज़ सीख सकते हैं। एंड थ्रू आउट दिस होल चैप्टर्स बिकम योर ओवरऑल स्टोरी। तो आप लोगों से जब मिलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, Yeah, सो that's true. इन योर ग्रेजुएशन, हर हर स्टूडेंट की तरह आपका एक वो था आइडिया कि स्टार्टअप करना है, कोई अपनी चीज़ बनानी है, आप लोगों ने वो चीज़ बनाई, ठीक है? और वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा पता है, क्योंकि उसके अंदर ना आई डोंट सी इट कि वो बुरा था या अच्छा था, क्योंकि वो जो भी था वो लर्निंग ही था। वो चले ना चले, उस हर चीज़ के अंदर लर्निंग होती है। बट डू यू रिमेंबर हाउ वाज योर फर्स्ट जॉब? बिकॉज़ आई पर्सनली बिलीव आप कितना भी तरक्की कर लें, आपको अपनी पहली जॉब याद रहती है, क्योंकि उस वक़्त आपके कोई डायनामिक्स नहीं होता, आपको कुछ नहीं पता होगा इंटरव्यू कैसे देना है, सीवी कैसे बनानी है, मैं जाके क्या बात करूँगी, बिकॉज़ एवरीवन इज़ लर्निंग फेज़, ठीक है? मैं ब्लेम तो नहीं करता यूनिवर्सिटी को, बट यूनिवर्सिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, क्योंकि वो कोई एनडीए साइन कर भी नहीं रही है, कि वो ये नहीं कह रही कि अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ेंगे तो हम आपको नौकरी देंगे ही देंगे, ठीक है? और आई थिंक यही सेम पॉलिसी कंपनीज पर अप्लाई होती है, कि वो ये नहीं कहते कि अगर हम आपकी सीवी ले रहे हैं तो आपको जॉब देंगे ही देंगे। अभी के हिसाब से अगर आप बताओ, कोई 2025 में ग्रेजुएट हो और वो जॉब लेना चाहता है, क्या मेन तीन चार चीजें जो उसको पहले करनी चाहिए, जो उसको आउटशाइन करेगा बाकी लोगों से? Okay, so मैं इस तरह से बता सकती हूँ because I've been recently taking a lot of interviews for my team as well over here, and जो मुझे अभी के जो बच्चे हैं उनको देख के लगा, obviously they're like younger than me, so उनको मुझे देख के ये लगा कि कुछ हैं, they're outshining, like they're in societies, they're very eloquent and they know how to articulate words and how to speak. So I think this is one thing that you should be good at, and also like even if you don't have any sort of working experience or internships आपने नहीं किए हैं, but you should be doing something of your own, like just for example like creating any sort of campaign for a brand that you like, you can do that. No, even if like nobody hires you for it, you can actually do that because you just have that creative edge and you know that creative fluids in your body, you can actually do that. So I think that that really makes those interns or people or the young grads stand out as compared to the rest of them क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है. They are building their skills, they're building their own personal brand, they're actually working on themselves, and not just on themselves, they're actually gaining experience as well. किसी भी फर्म में उन्होंने काम किया, किसी दोस्त को हेल्प कर दिया है. एंड व्हेन आई एम हायरिंग पीपल आई आल्सो सी कि उन्होंने क्या किया. You know, there was my sister's brand, I helped her do this and that. So you know, they know how the things are rolling and how it's like what the real drill is, as compared to the person who has just studied. And even if like you have a 4C GPA but you don't know what's actually happening and how does social media work, if I talk about marketing specifically, how does social media work, what platforms are there, how do you post, क्या मतलब क्या चीजें हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं. If you don't have that idea about things, then I think you will lack, and as compared to those people who have, because see, they'll get chosen, they'll get a preference over you if you just have like the textbook experience and not the real world experience. So मैं तो इस तरह से जब इंटरव्यूज करती हूँ, so मेरा तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यही होता है. I do see like the potential and the spark that they have, and you know the way that they talk and carry themselves as well. I think that's very important. That's the first thing that a person should have, because आपको बाकी चीज़ तो बाद में आती हैं. पहली चीज़ तो ये होती है ना, उसके बाद यू टॉक टू देम एंड you know seek उनके skills क्या हैं, चीज़ें क्या हैं. I think this is the first thing that you should, you know, all these grads should, because no university doesn't teach you that. It doesn't. So this is this is something this that you is have this to is figure very out yourself. this is very important that you highlighted, because now Gen Zs are not only doing jobs, and
You are a real life example. In my list, I can see there's a lot of Gen Zs, and including you. Now we need to also understand who is on the interviewee side. वो इंटरव्यू ले कौन रहा है आपका, ठीक है? एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एल्गोरिथम के साथ साथ मेंटालिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है? अगर आपका कोई इंटरव्यू 50 साल का बंदा ले रहा है, उसकी उसकी जजमेंटल क्राइटेरियाज अलग है। कोई जेन जी या जेन मिलीनियल ले रहा है तो उसकी क्या कहते हैं, कंसल्टेशन के क्राइटेरियाज बहुत अलग है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि डोंट डोंट जस्ट गो विद के ये मुझे डिग्री मिल गई और मैं उसको प्रिंट करा के ले जाऊंगा। यू Hmm. शुड स्टार्ट सेलिंग योरसेल्फ एंड बिकम अ सेल्समैन। आई डोंट नो Exactly. व्हाई पीपल डोंट केयर अबाउट इट। आई पर्सनली बिलीव कि इट्स नॉट लाइक कि अगर आप बीबीए में तभी आपको सेल्स करनी आनी चाहिए। आई थिंक अगर आपको जिंदगी में अपने आप को बेचना नहीं आता तो आप कोई काम नहीं कर सकते। एंड दिस इज वेरी Everybody should know that. हाँ I दिस think इज it's very important for even like I'll talk about developers for example because I'm working in a tech company. So I've seen what I've noticed is that everybody knows how to code, how to do this, that XYZ stuff. मतलब सबको सब कुछ पता because obviously they've studied and they're brilliant. But the people who outshine are the ones who have good communication skills, who can actually back up with their own words what they've done. So I think that's really important. Like So whatever fair you're enough. you're Fair enough. yes, I personally believe your education, your degree, your qualification is और योर टैलेंट, ठीक है, वो आपको एक हद तक ही ऊपर लेके जाता है। उसके बाद अगर आपको आउटशाइन करना होता है, यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग इन योरसेल्फ, ठीक है? एंड yes, I think this is where MNCs and difference in a small agency come, ठीक है? आप जब MNC में होते हैं, एवरीवन ऑन द सेम स्केल। आपको पता है अगर आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं जो कि एक एमएनसी है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, और अगर वहाँ पे 1000 लोग हैं तो 1000 के 1000 लोग टैलेंटेड हैं, तभी वो यहाँ पर है, क्योंकि वो exactly. मल्टीपल राउंड्स क्लियर करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई किसी के चाचा का बेटा है, किसी के मामा के बेटा है, Mm. ठीक है? तो सबने टेक्निकल राउंड सबने क्लियर करे हैं। तो आई पर्सनली थिंक एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये बंदा इस डेस्क में बैठा हुआ है तो यस, ही इज टैलेंटेड इनफ और ही हैज एजुकेशन और अ बैकग्राउंड और अ बैकअप कि ये इस जगह बैठ सकता है। बट Yeah. पीपल यूजली डोंट रियलाइज कि यार जो कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं वो क्यों ऊपर जाते हैं। इट्स नॉट Yes. अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट what they are doing. Not even And about skills. It's just it's, about it's not the it's not even way. about it's not even Yes. about कि यार कौन किसका फेवरेट है, ठीक है? आई डोंट वांट यूज द बैड वर्ड इनटू इट, बट लोग कहते हैं ना वो फेवरेटिज्म है। देयर इज नो फेवरेटिज्म। आई लर्न फ्रॉम माय मेंटोर्स कि इफ यू वांटेड टू नो कि इफ यू आर ग्रोइंग, तो आपको ये पता होना चाहिए आपके थोड़े से दुश्मन होंगे, ठीक है? अगर आपको ऑफिस के अंदर सब लाइक करते हैं ना, इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है? यू विल बी अ बैड बिच टू समवन और बैड पर्सन टू समवन, तभी आपको पता चलेगा आप ग्रो कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हो ना तो सब आपसे खुश नहीं रह सकते। हो सकता है इट्स अ बायस डिसीजन, बट दिस वर्क आप अपने ऑफिस में भी देखोगे, जो बंदा ग्रो कर रहा होगा ना, सब उसको पसंद नहीं कर सकते। कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं यार ये गलत है। आप किस तरीके से आउटशाइन करोगे? अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में 4 लोग हैं, चारों एक ही काम करते हैं, चारों एक ही पोजीशन के लिए हायर हुए हैं, 4 अलग-अलग रीजन देखते हैं, तो वो उनमें से किसी एक ही ने मैनेजर बनना है। एंड यू नीड टू रियलाइज़ कि रेस के अंदर एक ही बंदा जीतेगा, ठीक है? सो अगर आप हर चीज़ शेयर करने लगोगे, अगर आप हर चीज़ को ही इस तरीके से देखोगे कि नहीं यार मैं किस तरीके से आउटशाइन करूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मुज़ना की पोजीशन में 4 लोग हैं, क्योंकि बिग एमएनसीज डू हैव दिस, दे हैव मल्टीपल पीपल ऑन अ सेम पोजीशन एंड दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डायमेंशन। अगर आपको उसका मैनेजर बनना है तो हाउ डू यू डू दैट? आप कुछ तो उन 4 लोगों से बेहतर करोगे, उन 3 लोगों से बेहतर करोगे, तभी तो आप बनोगे। और अगर चारों लोग एक साथ काम करते रहेंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर कोई भी ना कोई भी ऊपर जाएगा ना Mm. कोई भी नीचे जाएगा, वो हमेशा उसी जगह पे रहेंगे। सो दिस इज वन थिंग। Okay, moving forward, your first job was market, if I'm not wrong, marketing executive in Ocean One Private Limited, right? Yes. It was an educational consultancy. Okay, perfect. You work for 9 months, ठीक है? Because I usually don't see, क्योंकि जो आपकी पहली जॉब होती है वो somewhat stepping stone ही होती है। आप खुद भी समझ रहे होते हैं, कंपनी भी आपको समझ रही होती है। एंड आई थिंक there are two different pathway जब आप बीबीए कर लेते हो, ठीक है? There are people, नॉट ओनली बीबीए, एडवर्टाइजमेंट की भी अगर बात कीजिए, दे आर पीपल जो कि बिग एमएनसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? साची एंड साची, दिस एंड दैट, इन बड़ी एजेंसी से, ठीक है? बट आई थिंक
ज़रूरी नहीं है हर बंदे का सेम क्राइटेरिया और सम उसी सेम हर बंदा उसी तरीके से ग्रो करे, ठीक है? Hmm. सो यू स्टार्टेड ऑफ वर्क फॉर 9 मंथ्स ऑलमोस्ट, ठीक है? एंड देन यू मूव टुवर्ड्स अनदर कंपनी, ठीक है? आई वांटेड टू नो कि व्हाट्स द माइंडसेट ऑफ अ जेन ज़ी लुक लाइक व्हेन दे आर शिफ्टिंग टू जॉब्स, ठीक है? अगर मैं मिलेनियल्स की बात करूँ ना, अगर मैं मिलेनियल से पहले की बात करूँ, आई एम प्रीटी मच श्योर शायद आपने भी सुना हो या देखा हो, हमसे पहले की जनरेशन जो थी ना, वहाँ पे जॉब चेंज करने का क्राइटेरिया था ही नहीं। आई हैव सीन पीपल जिनकी पहली और जिनकी आखिरी जॉब सेम है, वही है, सेम है, ठीक पच्चीस है? पच्चीस 30 30 साल मतलब वही। वो कंपनी ने उनको बोला है कि बस सर अब आप चले, अब आप रिटायर हो गए, हम आपको पेंशन भी देंगे, आप घर चले आए। दैट्स द मेंटालिटी। देन वी सी द शिफ्ट इन आवर जनरेशन कि ठीक है यार, अब Yeah. इस तरीके से चल नहीं सकता, थोड़ी सी ग्रोथ करनी, हम थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, लालची हो गए और फिर हमने उन चीज़ों को थोड़ा कम करा। वी सी पीपल ग्रोइंग इन 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर, और ये आप देख सकते हो, यू कैन गो ऑन लिंक्डइन, सर्च फॉर डिफरेंट प्रोफाइल और आपको अंदाजा हो जाएगा। एंड देन यू गाइस केम, आप लोगों का सिंपल फॉर्मूला है, अगर तो ये मेरे चेक पॉइंट पे उतरेगी तो मैं इसके साथ रहूंगी, वरना मैं आगे चली जाऊंगी, ठीक है? दिस True, इज वॉट आई that's दिस true. दिस इज वॉट आई पर्सनली बिलीव, ठीक है? मैं इसको गलत नहीं समझता, क्योंकि आई एम अ वेरी गुड बिलीवर ऑफ कि सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। योर सक्सेस एंड माय सक्सेस वोंट बी अलाइन, बेशक आप सेम फील्ड में हो, Everybody has a different journey. ठीक है? जर्नी भी नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप, क्योंकि ना Paths भी different होते एंड हैं. पॉइंट भी बहुत अलग है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, एंड जस्ट फॉर द ऑडियंस के, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ योर करियर मनी शुड बी योर प्रायोरिटी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई एम प्रीटी मच श्योर कि जेनजीज और अल्फा का अलग अलग पॉइंट हो सकता है, बट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बंदा एक ही एक ही तरीके से नहीं आ रहा, ठीक है? पीपल कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो ईदर यू नीड टू रियलाइज कि आपको पता चले कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। आई एम अ ट्रू बिलीवर फॉर दैट। अगर कोई बंदा कहता है ना मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ मनी इज अ बाय प्रोडक्ट को समझने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। देन यू रियलाइज ओके मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है? स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, आई थिंक पीपल शुड बी फोकस ऑन मनी फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, और उसके लिए अगर आप स्विच भी कर रहे हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स आई डोंट थिंक सो आपके स्टार्टिंग के 1-2 साल आपको भी याद रहेंगे या किसी और को भी याद रहता है, ठीक है? बट स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट नोइंग दिस। आई वांटेड टू नो व्हाट वाज योर क्राइटेरिया, या आप अपनी जनरेशन में किस तरीके से देखते हो? आपने 9 महीने काम करा, ठीक है? Mhm. आई एम प्रिटी मच श्योर जब आप उसमें जा रहे होंगे तब भी आपको उसमें अच्छी चीजें दिखी होंगी, ठीक है? 9 महीने बाद यू आर ऑन अ सेल्फ रियलाइजेशन पॉइंट कि ओके फाइन, मुझे जॉब मिल तो रही है, बट मैं उसको इवेल्युएट करने के लिए मेरे पास अब कोई चीज है, क्योंकि पहली जॉब पे तो आप इवेल्युएट कर ही नहीं सकते ना, आपके पास कोई और चीज नहीं होती। Mhm. व्हाट वाज द इवेल्युएशन पॉइंटर्स, या व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस जिसमें आपने सोचा कि नहीं यार, आई हैव टू मूव फ्रॉम दिस कंपनी टू दैट कंपनी, बिकॉज योर नेक्स्ट कंपनी यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट लाइक 2 ईयर्स, राइट? Okay. हाँ। Okay, so I'll just share my experience. As I said that I, had this sort of startups in university, so I didn't get a chance to do any sort of internship. So हम्म, according to me, this was like going to be my first sort of internship. I went for an internship, I got a job. So that was about it. I think ओके, that's how this job happened. So मेरे दिमाग में तो ये था कि it's going to be an internship, I'll just learn for 3 months and stuff. But they offered me a job. I did a job. I was liking it. And, for 9 months, I felt that I've learned enough things. And then I left the job because, again, a Gen Z reason, but I don't know, because I don't think that we stay in places that make us feel stagnant or that feels like, we've hit a plateau. So I did feel that, this is not the right company for me right now because I've grown enough and now I need to step out of it and have to get more experience and see what else I can do, right? Because आपको खुद भी तो होता है ना कि you have potential, so you need to see कि आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो. तो उतना उस वक्त तक कर लिया था, and then I got an offer from this marketing agency who were working with like different clients. We had pharma clients, FMCGs and stuff. So I just thought to join them. I went for an interview, I got hired, and I think that was it. But for me, again, I didn't focus on the money aspect. I focused on the learning aspect. I think money एग्री, just came with it. It एग्री, followed एग्री, एग्री, because एग्री। आप वो jump करते हो तो दैट इज उसके व्हाट आई एम साथ ही वो सेइंग। सो जाता है. दिस इज अ वेरी थिन लाइन टू अंडरस्टैंड, ठीक है? माय रोड मैप एंड योर रोड मैप, या जेन मिलीनियल्स और जेनजीस का रोड मैप सेम नहीं हो सकता,
ठीक है, हर बंदे का अलग अलग होता है, सही है। जेंजीज के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, या उनको लक कह लें या लकी कह लें, क्योंकि मेरे घर में भी जेंजी है, ठीक है। और अगर मैं अज्यूम करूँ ना, तो आप दोनों बिल्कुल सेम तरीके से सोचते होगे, ठीक है। उसमें ये चीज है कि आप लोगों के पास या तो कोई मिलीनियल बहन भाई है, या तो कोई अम्मा अब्बा हैं जो कि समझते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी मिलीनियल बहन भाई? I'm the eldest. ओके, परफेक्ट। तो आपका वाला केस अलग है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर इन ऑल योर स्टेप्स योर फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। व्हेन यू हैव अ जेंजी, क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस, तो आपको पता होता है कि उनको ग्रो कैसे करना है, ठीक है। Exactly. आप Because लोग if I, sorry to cut you off, but I'll just say that because I have two siblings, so we are all Gen Zs, right? But मेरे बीच में लाइक मुझ में और उनकी पर्सनालिटीज में बहुत फर्क है, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ सालों से भी बहुत फर्क आता है, सो एंड लाइक यू आर, और एंड जस्ट टू टेल यू, आप सारे एक ही जनरेशन में, अभी कुछ सालों का फर्क है, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आपने बचपन में फोन यूज नहीं करा, आपने भी बचपन में फोन यूज करा है, उन्होंने भी यूज करा है, बट देन यू नीड टू रियलाइज कि जब 5 साल से इतना गैप आता है, रिमेम्बर कि हमने उस चीज को होते हुए देखा है। सो वी आर फ्रॉम द जनरेशन जहां पे हमने कीपैड के फोन आते आते देखा है, देन वी गो टू द टच फोन, ठीक है। दैट्स व्हाई आई से कि हर बंदे का अलग मेंटालिटी है। मैं इसको बहुत अच्छे मैं द पॉइंट व्हेन यू से कि ठीक है, आफ्टर 9 मंथ्स यू रियलाइज कि नाउ आई नीड टू ग्रो, ठीक है। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ अ पर्सन हैज अ फाइनेंशियल इश्यूज, उसका मेंटालिटी अलग तरीके से चलेगी, दैट्स ठीक ट्रू। है। तो मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि यार, आपको ना बेशक ये चीजें पता हो, बट अपने आप की ना लर्निंग को ना रोकें या अपनी ग्रोथ को ना रोकें, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल से इट्स के अभी आगे तो मैं, जब मैं 10 पर्ल्स वाली टाइम तक पहुंचूंगा तो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, बट जब आप किसी कंपनी में 3 साल से ज्यादा रुकते हैं ना, तो उसके तीन बहुत मेन रीजन होते हैं। एक कि कंपनी बहुत अच्छी होती है, दूसरा ये वो बहुत पैसे देती है, या तीसरा कि आपको पता होता है कि ग्रोथ है मेरी। क्योंकि कोई भी बंदा देखे, आई पर्सनली बिलीव कि एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को या एक बंदे को जो काम कर रहा है, उसको ये चीज सीख लेनी चाहिए, आप हैं तो कंपनी है, कंपनी के होने से आप नहीं है, ठीक है। देर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू इन्वेस्ट। वो अलग बात है कि अगर मैं मैथ्स निकालूं तो आप अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ या अपने बीवी के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ कम टाइम गुजारते हैं, अपने ऑफिस में ज्यादा टाइम कंपनी में गुजारते हैं, ज्यादा गुजारते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो आपकी अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है, सही है। सो यू डोंट अटैच टू अ कंपनी, आई पर्सनली बिलीव यू अटैच टू द पीपल दैट यू वर्क। दैट्स ट्रू। अगर अगर मैं अपर अम्ब्रेला पे जाके बाहर के बोर्ड का नाम चेंज करके कोई और नाम भी लिख दूं ना, आपको वो लोग चाहिए, क्योंकि यू लव दैट सराउंडिंग। बट अगर देखा जाए, आपने भी ये चीज देखी होगी, यू इन्वेस्टेड इन द नेक्स्ट कंपनी, यू आर डूइंग गुड असिस्टेंट क्लाइंट सर्विसिंग, टॉकिंग टू पीपल, कनेक्टिंग विद पीपल, ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर इट वाज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। क्योंकि कंपनी भी पता चल जाता है, स्मॉल कंपनी टू मीडियम कंपनी, इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। मैनेजिंग क्लाइंट्स, डूइंग थिंग्स, ठीक है। यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years इन दैट, ठीक है। और यू गेट टू अ प्रमोशन लेवल की, ठीक है। मैंने क्लाइंट सर्विसिंग से स्टार्ट करा, क्योंकि आप उसमें सीख भी रहे होते हो और वो पाथवे आपको दिख रहा होता है। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव 1 से 1.5 साल लगाना इसलिए भी जरूरी है कि यार, आप कंपनी को समझे, कंपनी आपको समझे, ठीक है। लेकिन आपको 6-7 महीने में अंदाजा हो जाता है कि इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। अगर आप जर्नल फॉर्मूला देखें तो 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड होती है। आफ्टर 1.5 मंथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों को पता होता है कि 3 महीने बाद इसको सर्टिफिकेट मिलेगा या इसको थैंक यू सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन करनी होती है, ठीक है। सो यू इन्वेस्टेड लाइक ऑलमोस्ट लाइक few few फ्यू years, मंथ्स। few months, or few या almost like a air in the eye edge, and I'm pretty much sure it was a very thought out decision। क्या ठीक है, पहली जॉब कर ली, इंटर्नशिप के लिए गई थी, जॉब मिल गई, दूसरी वाली जॉब के लिए ही जाना है, तो आपने सारी चीजें इवेल्युएट करी होंगी, एंड देन यू मूव टू दैट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, देन यू मूव टू 10 पर्ल्स, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, ऑब्वियसली इट्स एन एमएनसी, ठीक है। इट्स अ ग्रोथ प्लान, ट्रेजेक्ट्री बहुत बड़ी होती है, ठीक है। um, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इतने अर्ली स्टेजेस में ऐसी कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है। आई थिंक यू ग्रेजुएटेड इन 2020, कोरोना के 2 साल भी निकाल लें तो ऑलमोस्ट लाइक आपने ऑफिशियली काम जो करा है वो 3 साल ही करा है, और वो 10 पर्ल्स ही है,
उसके अलावा तो कोशिश ही कर रहे थे, क्योंकि जो 2021 और Hmm. 2022 था उसमें तो पूरा पाकिस्तान सिर्फ कोशिश कर रहा था काम करने की, ठीक है, या सस्टेन रहने की, किसी तरीके से कोरोना तक सस्टेन रह जाए, ठीक है। Okay, so you got a job in Temples, ठीक है। I wanted to know how was your experience, because when in Pakistan, to be very honest, people judge you by the name of a company that you work in, ठीक है। और By the university you've studied from, by the company you work in. I think it's just that. अच्छा, बाय द यूनिवर्सिटी यू स्टडी फ्रॉम का जो टाइम फ्रेम है ना वो बहुत छोटा है, ठीक है। वो Hmm. एक वक्त के बाद ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। True. बेशक आप आईबी से पढ़े, आप लम से पढ़े, क्योंकि द पॉइंट यू रीच टू अ पॉइंट कि जहाँ पे सारे आईबी वाले ना, फिर आप वो फ्लेक्स ही नहीं कर सकते। क्या फ्लेक्स करेंगे, किसको That's बताएंगे, true. ठीक है। That's अगर true. फॉर एग्जाम्पल आईबीएस से ग्रेजुएट हुए हैं, अब अगर आप एक कंपनी में आ गए जहाँ पर है ही सारे के सारे आईबीएस वाले, तो क्या ही फ्लेक्स करना। फिर तो और मसला होता है कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो आपको ये भी देखना होता है, यार मैंने भी तो वहीं से पढ़ा, मैं अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा। Yeah. बट हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन 10 क्योंकि एज आई मैंशन 3 साल से ज्यादा तरी हो गए आपको, ऑलमोस्ट 3.5 years नाउ, ठीक है। Yes. Oh my God. I honestly, I hadn't imagined this because मुझे तो यही था कि अच्छा ठीक है 8 months 9 months and इस तरह से and being a person like from my generation, we just stay in a place if that place is checking the list that we have, right? So I think it ticked all of the boxes that I had. Like, you have the flexibility, the company is amazing, the people over here are amazing, the work culture is top notch, and then you also see growth avenues. So it's not like you feel that ke aapka career abhi bas यही है, खत्म होने वाला है बस यहाँ पे. So I think there are a lot of factors like these 5 things I just mentioned on my fingertips in an instant, because when I think of 10 pills, it just occurs to me naturally. तो ये वाली चीज एक है, and I think it has really helped me. And the decision is just easy like that. I mean, why would you want to leave a company which is offering you growth, flexibility, and compensation that's fair? So I think it's just these things, and yeah, you're getting So experience as well. if It I all talk adds up. about, growth, तो growth can be defined in a company or multiple companies is just कि आपकी जो satisfaction है, क्या कंपनी वो satisfy कर रही है नहीं कर रही, but it goes both ways, ठीक है। I personally believe it's not like only one way। जैसे अभी Yeah. आप कह रहे हो ना कि यार मुझे ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, कंपनी वो दे रही है, कंपनी वो सबको देती है, ठीक है। Mm, बट देन यू नीड टू रियलाइज कि आपको भी कंपनी में उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। exactly. दिस इज वेयर पीपल टू यूजली डोंट अंडरस्टैंड लाइक हाउ समवन एल्स इज ग्रोइंग एंड आई एम नॉट ग्रोइंग, ठीक है। एंड देन दे नीड टू रियलाइज कि व्हाट, बिकॉज इन आवर जनरेशन लाइक, और इन आवर सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर जनरली, if you're getting something, or sorry, if someone is getting something and if you're not getting something, people usually think यार कंपनी के अंदर मसला है, गवर्नमेंट के इशू है, उस दे डोंट जज यू इन अ वे कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर, यू बीइंग इन द कंपनी फॉर 3 years, ठीक है, आई वांटेड टू नो हाउ एन एम्प्लॉय शुड डू थिंग्स, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप जब 10 पल्स में गए होंगे आपको सब कुछ आता होगा। You have your learning curve as well, and I Yeah. personally believe people grow when they do have a flexibility, ठीक है। Yes. आपके पास ना मोल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है, अब मैं नई जगह आई हूँ, मुझे अपनी तरफ से इनपुट भी देना है, बट मुझे ये रियलाइज भी रखना है कि मुझे इसके साथ साथ चीज़ों को सीखना भी है। बिकॉज इफ यू आर डूइंग वन थिंग एंड डूइंग इट फॉर द लेस, फॉर लाइक मोर देन 3 4 5 years, तब आप उस कंपनी में जरूर रह सकते हैं, बिकॉज दैट पोजीशन टू पोजीशन ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये एक बंदा है, उसकी जॉब है कि उसको पेरोल बनाने, पेरोल में कोई एडवांसमेंट नहीं आएगी, उसने हर महीने पेरोल ही बनाना। सो सॉरी अगर मैं किसी पेरोल वाले बंदे को कह रहा हूँ, हाँ अच्छी अच्छी जॉब होगी, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि जॉब टू जॉब भी वेरी करती है ना। आप सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, मार्केटिंग वैसी ग्रो हो रही है, आप रोज सुबह उठते हो और आपको चलता है ओके अब नया एआई टूल आ गया, ये भी देखो, ये नई चीज हो रही है, ठीक है। एंड यू आर इन आईटी सेक्टर, ठीक है, 10 पल्स वो वैसी अलग चल रही है, मतलब वो 100 टाइम्स की स्पीड से चल रही है, ठीक है। आज कोई नई चीज है, कल कोई नई चीज आ जाएगी। व्हाट पॉइंट इज दैट यू वांटेड टू शेयर टू पीपल कि यार अपने अंदर भी इंसान को ना ये चेंजेस लेकर आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव आपकी पहली जॉब की मुजना जफर, आपकी दूसरी जॉब की मुजना जफर और तीसरी जॉब की मुजना जफर के अंदर भी चेंज है,
ठीक है, आप उस मेंटालिटी से नहीं जा सकते, आप उस माइंडसेट से ऑफिस नहीं जा सकते। ठीक है, ऑल्सो टू नीड टू रियलाइज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में बंदा सेम ही होता है। ठीक है, मुज़ना जफर के अंदर कोई सीन नहीं लगे कि वो सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन गई। आपको अपने अंदर चेंज लेकर आना पड़ता है। Yeah. ठीक है, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिलती है। Three things, according to me: flexibility, adaptability, and agility. I think if you have these three things, you're good to go. I mean, you can climb the ladder, corporate ladder, be it any ladder in the world. You can do that because I think with the changing times, आपको ये भी realize करना है that you have to adapt with the environment. For example, like with AI's intervention and everything, like being streamlined, so you have to make sure that you're also learning and you're not just taking AI as your enemy, like AI versus Muzna. It's not that. It's like AI and Muzna. It's that. And I think you need to learn that, like as an individual. I'm also learning that because it's new for everybody, right? The puri jo AI ki wave, and especially if you're working in a tech company, you have to adapt really fast, because if you don't pivot and adapt, you'll be left behind. And that's what, like, our CEO also says. And so I think that's one thing that everybody has to do, be it in tech company or a non-tech company. It really doesn't matter. If some things are happening, you need to adapt. You need to adapt with them. You need to change. You need to change your ways, and you just can't think and sulk and just be like, "Acha, ye hai, wo hai." It's against me. It's this happening. It's that happening. You shouldn't do that. I think sari cheeze, you should focus on how to make yourself better, and how can you leverage that particular thing. For example, AI, how can you leverage that and put it in your work, and how can you maximize your output? Because company at the end of the day, is gonna see that. It's not gonna be like, it's not gonna take my answer, or it's not gonna take no for an answer. As a fact, if I say, okay, mujhse to nahi ho raha, ya main to nahi kar rahi, bas, I'll just follow the old things and old stuff that I used to do. It doesn't work this way. So I think this is one thing that we need to also learn, be it in any sector that we are working in. आई थिंक एज अर्ली एज यू नो कि आपकी ग्रोथ तब होती है जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी कंपनी में आपका पार्ट क्या है। ठीक है, और आपके होने से ज्यादा आपके ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कंपनी इज ओनली इन्वेस्टिंग इन यू व्हेन दे रियलाइज यू आर अ वेरी गुड पीस टू बी विथ। ठीक है, और दे नीड टू इन्वेस्ट मच मोर अगर वो आपको लेट गो करते हैं और किसी और को लेकर आते हैं। Yeah, I think they just see that if you're a good resource, तो फिर वो आपको किस तरह से आपका and आपको and and यूटिलाइज कर and, and सकते it's not about कि they see। ठीक है, you should believe in yourself and try to outshine ताकि वो देख सके। हैं. ठीक है, because when you are marketing executive, ठीक है, and I'm very clear on it, company don't give promotions on just the basis of कि आपने 1 साल हो गया मुबारक हो आपको, जो ऐसा नहीं होता। ठीक है, on a bigger picture every company is business। ठीक है, Musna Zafar is 0.0000001% of that company. But that 0.001% is important to run on that specific career pathway. ठीक Or है? maybe contributing in a way that's Yes, taking I think me forward. what people do mistake, they do things, but they don't calculate or they don't showcase those things. Okay? This is what I learned from my mentors. ठीक है? काम हर कोई कर रहा है। कोई ऐसी चीज टेम्पल कोई ऐसी चीज नहीं बना रहा, ना वो मार्स पे जाने के लिए सैटेलाइट्स बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो उस पूरी कंपनी के अंदर 1000 1200 1500 जितने भी लोग पाकिस्तान कराची ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन सबको अपना काम आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो आप उसको आउटशाइन कैसे करोगे, आप उसको दिखाओगे कैसे। ठीक है, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बता कैसे रहो। ठीक है, कि अगर मुजना सफर कहीं जा रही हैं और देखते हैं कोई बंदा किसी जगह पे फंसा हुआ और वो आपको हेल्प कर सकते, तो आप कुछ नहीं जाता आपके 5 मिनट में। ठीक है, आप उसको कहें कि ठीक है आई कैन डू दैट। अगर आप कुछ आपने कोई इनिशिएट लिया है, क्योंकि अगर मैं थोड़ी थोड़ी चीजें करता रहूँ ना, मुझे साल के एंड तक याद ही नहीं रहेगा मैंने कितनी चीजें करी, अनटिल और अनलेस कि आप उसको ट्रैक करें, आप उसको प्रेजेंट कर सकें, आप बता सकें कि मैं क्या करती हूँ। ठीक है, दिस इज वॉट आई बिलीव कि नाउ व्हेन कंपनी इंटरव्यू में ये पूछा आप अपने आपको 5 साल में कहाँ देखते हैं, तो उससे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि 5 साल में इस पोजीशन को आप कहाँ देखते हैं। ठीक है, बिकॉज वेन यू आर गेटिंग टू अ कंपनी यू शुड नो कि यार उनके क्या ट्रेड ऑफ है, वो किस तरीके से सक्सेस स्टोरी देखते हैं, क्या वो मैच हो रही है नहीं हो रही।
एंड इट्स नॉट अबाउट टेम्पल्स, इट्स नॉट अबाउट एनी बिग जाइंट्स, ठीक है? आपको लगता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ सही है, लेकिन उसमें ग्रो कैसे करेंगे? जैसा भी आपने कहा, जब आप गई थी टेम्पल्स, यू डोंट हैव अ प्लान कि मैं यहाँ पे 3.5 साल रहूंगी। राइट टाइम पे कंपनी और आपके माइंडसेट मैच हो रहा है, तभी आप इतने टाइम से हैं। True. और अल्लाह का शुक्र है कि आपका ले ऑफ नहीं हुआ, वरना हर कंपनी में हो भी रहे। तो मैं तो ये कहता हूँ, अल्लाह ना करे किसी का हो, लेकिन पाकिस्तान अब नहीं, वो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वाली जनरेशन को तो ले ऑफ से भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फुल फुल रेडी होती है इस चीज के बारे में। वो कहती Yeah. क्या क्या ही ले ऑफ होंगे, इससे पहले मेरे पास 4 ऑफर थे। बट यस, अच्छा, गो बैक टू वन थिंग इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है? पीपल यूजली डोंट give importance to learning and development because when you started your professional career, they try to get busy in that thing, कुछ ज्यादा ही, ठीक है? But in your case, what I see is कि you invested in your learning and development as well as आपने grow भी करा, ठीक है? You graduated in 2022. You take a year. I'm pretty much sure आप उसमें काम कर रही होंगी। 1 साल बाद you enroll yourself in diploma of digital marketing in IBA, ठीक है? Then you start working, and recently you get yourself enrolled in IBA MBA, ठीक है? Do you think getting experience एंड अंडरस्टैंडिंग कि यार मुझे अब किस चीज़ की ज़रूरत है, इस तरीके से लर्निंग एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए? क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं, मैं दोनों को गलत नहीं कहता। एक कहता है कि यार मैंने अभी बैचलर्स करा, फौरन से मास्टर्स कर लूंगा, मेरा माइंडसेट वही है, मैं पढ़ने वाले मोड में हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं पैसा कमाऊँ, मैं फौरन से मास्टर्स कर लेता हूँ, ठीक है? एक तरफ आप वाले लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार, वी ट्राई टू इन्वेस्ट आवर टाइम इनटू द बिजनेस एज वेल, एंड वी अंडरस्टैंड हो सकता है 3 साल बाद मुझे एमबीए की रिक्वायरमेंट ही ना हो, मुझे किसी और कोर्स को करना पड़े जो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो। What was your thought process while taking these decisions? How do you see learning and development? Is it important? Because I'm pretty much sure आप 3 साल से काम कर रही हैं, आपके पैसे भी सही होंगे, कंपनी भी अच्छी है, पढ़ने की जरूरत क्या है यार, चाहे काम करें वापस आ जाए। एंड दिस Yeah. लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज नॉट फॉर एमबीए ओनली। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि योर 9 to 5 इज पैक्ट, कंपनी ने 9 to 5 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप वहाँ काम करते हैं। बट इफ अगर आपको ग्रो करना होता है, आपको 5 से 7 पढ़ना पड़ता है। इधर यू स्टडी अबाउट योर फील्ड, क्या नई चीज आ रही है, बिकॉज मार्केटिंग वैल्यू हर दिन बढ़ रही है, ठीक है? What's your thought process on learning and development? How it gonna change you? What are the things that you do that people don't do? क्या guide करना चाहोगे? I think I won't say that, I'm doing something that people don't do. I would just say that for me, the right time was this. मुझे ये था कि मुझे मास्टर्स फॉरेन से नहीं करना, and I need to get experience in order to understand if doing masters is actually necessary or not, right? तो जब मेरे पास experience आ गया था, then I felt the need of doing it, not just because I had to do it and just go back and learn again, but actually जो मुझे ये था, मेरा purpose basically ये था, I have to gain knowledge, I have to learn, unlearn, relearn, whatever it is, I need to do that. And I think this has been the basis of my life in general as well. It's not just specific to masters or my job in general. In my life generally, I operate like that. I'm open to unlearning things and learning, relearning. So I think it just translated into the master's program that I'm doing right now because I felt that I'm studying. What else I can do? I need to, upskill myself. I need to gain knowledge, and for a fact you can get knowledge from anywhere, and I think to each their own. But for me, I thought that getting back to a classroom setup would really help me grow. So I think it just really suited me. That's what I did. And I think it was a good decision so far because I'm 1.5 years into the course right now, into the degree right now, sorry. So it's going amazing, and I think you learn a lot from the people that you're studying with as well, because when you look at them, you just feel like you know nothing, first of all. And So MBA is different ना, मुझे लगता है बीबीए तो exactly. बीबीए इज लाइक सेम। आपको पता होता है, मैं Yeah. मेरे बराबर वाले को भी उतना ही आता है जितना मुझे आता है, क्योंकि सब इंटर करके आए, सब ओ लेवल्स करके आए। जी, और वहाँ पे like everybody is so amazing and you just एमबीए इज see वेरी it. डिफरेंट। एमबीए आई थिंक एमबीए में सबसे बड़ा मसला होता है कि आपको 4 साल बाद लगा आपको करना चाहिए, यू विल बी सीइंग पीपल जो उन्होंने फॉरेन स्टार्ट करा होगा, आप उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर भी बैठा होगा, किसी कंपनी का हेड I ऑफ have ये a भी बैठा। doctor in my class too, so
I think it's डॉक्टरों के different साथ for डॉक्टरों को क्या जरूरत है यार एमबीए करने की कुछ see, और। but like it's a learning curve for them as well, and to each their own, right? Because you would have felt that you need to do it. Everybody has This is what I a believe different ना, thought process. what I think is कि people usually indirectly और directly say कि यार नहीं यार लर्निंग तो उसकी इस तरीके से होगी, आपने ये चीज करी है। भाई किसी को शौक है, किसी के पास टाइम है, वो कर रहा है, तो आपको Mhm. क्या मसला है? ठीक है। और Gee, आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आप एमबीए कर रहे होते हैं ना, एमबीए इज नॉट अबाउट टेकिंग अ डिग्री, एमबीए इज स्पेसिफिकली टू मेकिंग कनेक्शंस। ठीक है। बिकॉज नाउ जो आपके सीधे हाथ पे बैठा हुआ है वो कोई भी हो सकता है। yeah, ठीक है। true. एंड यू नीड टू रियलाइज, और आपको नहीं पता कि शायद उससे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़े और वो आपकी क्लास में। ठीक है। एंड देन यू Exactly. नीड This टू is the रियलाइज, thing. कि यार उस 2 साल को मैं किस तरीके से कैश आउट कर लेती हूँ। ठीक है। गेटिंग अ डिग्री और गेटिंग एन एमबीए इज नॉट समथिंग के वो हर कोई कर रहा है। उसको यूज कैसे करना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। कर तो हर कोई रहा है, वो तो मसला नहीं है। एमबीए बीबीए करने के बाद भी कर रहे हैं लोग, बीकॉम करने के बाद भी कर रहे हैं, 10 साल बाद उनको याद आ रहा है वो भी कर रहे हैं, बट देन यू नीड टू रियलाइज कि आपको I उसको think with कैश। the right intention, if you've decided why you need to do it and then you're doing it, then it's good. If there's एंड no हाउ thought टू यूज इट, process लाइक behind it, then एंड हाउ टू यूज द डिग्री, मतलब आई पर्सनली बिलीव बैचलर्स तो फिर भी कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पे कर लेनी वो तो चाहिए कि चलें ठीक है। बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है लाइक मतलब अब आई सेड बैचलर्स because I बैचलर्स went तो with आई the थिंक, flow. हाँ बैचलर्स Yeah. इज लाइक द बेयर मिनिमम राइट नाउ। ठीक है। इन Yeah. 2025 इफ समवन इज नॉट इवन अ बैचलर्स, तो बैचलर्स को तो जरूरत है कि वो बाहर जाए या ना जाए। आई थिंक अब वो हुकूमत को भी लगा देना चाहिए कि बैचलर्स तो एटलीस्ट करना ही जी. करना है। ठीक है। एमबीए वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग, सही है। अच्छा, लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज यू आर अ जेनजी वर्किंग गुड, 10 पर्ल्स में एमएनसी में भी काम कर लिया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम कर लिया, स्टार्टअप भी खोल लिया, हर चीज अच्छे तरीके से चल रही है, एमबीए भी कर लिया, आईबीए से भी पढ़ लिया। ठीक है। सो यू हैव डन ऑलमोस्ट 90% ऑफ एवरीथिंग। 25 साल एमबीए में, तो चल रहा है. मतलब वही 1.5 साल तो कर ही लिया। तो आप मेरी पॉलिसी सेम है, एजुकेशन इज समथिंग व्हेन यू एनरोल एंड यू गो इनटू द क्लास। आप 2 साल, क्योंकि देखिए मैंने 6 साल में बैचलर्स करे एंड आई एम ओके विद इट। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप एक मरतबा चले जाओ, क्योंकि आप बाहर तो आओगे एमबीए हो करके। जाता है. ठीक है। वो किसी भी तरीके से। ठीक है। नाउ आई वांटेड टू नो यार, दिस थिंग लुक वेरी फैंसी व्हेन वी सी ऑन अ बिगर पिक्चर। ठीक है। वाह यार मजे हम उस नजर फर के, एमबीए भी हो गया, 10 पर्स में 3 साल से जॉब भी, इतने पैसे भी है। दिस दैट्स पीपल्स परसेप्शन। ठीक है। बट आई पर्सनली बिलीव उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल प्रोफाइल पे जाता है कि हाउ आर यू शोकेसिंग इट। Yeah. यू आर नॉट गेटिंग एवरीथिंग बिकॉज यू आर लकी, यू आर गेटिंग एवरीथिंग बिकॉज यू आर डूइंग ऑन अ राइट स्टेप्स। ठीक है। No, I think luck has to play a part in it as well because I बट feel that there बट are other amazing people but out there as well. but the point There's is no difference between but them the and po- me. but the point is you don't get a job with the luck, you got a job when you are at the right time at the right position। ठीक है। either you want to say it as a luck or not, but understanding the fact कि you are not getting a job because you are good or you are bad, you are getting a job because you are at the right time at the right position। ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं अभी हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट जॉब जो आपको चाहिए हो, जहां जहां आपको जाना हो, वो अभी ओपन हो, Hmm. लेकिन आपको नहीं पता। Yeah, could be possible. पाकिस्तान में हायरिंग तो हो रही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान में हायरिंग नहीं है। ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह सकता अभी कि नहीं, 10 पल्स मेरी मेरी ड्रीम जॉब थी, अब मैंने 10 पल्स में चली गई, अब मैं इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकती। क्योंकि ग्रोथ का मसला है कि जब आप एक जगह पहुंच जाते हैं ना, दिस इज Yes, हाउ you यू should keep dreaming big. दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। मैं पाकिस्तान में था, ये यूएई आया था, मैं यूएई मुंह में कहता हूँ Hmm. दिस इज हाउ इट्स वर्क। ठीक है। ऐसा नहीं Yeah, है। आपको true. लगता है, मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं जब 50,000 क्या करता, जब 25,000 कमाता था स्टार्टिंग ऑफ 2015 2014 में, तो मैं सोचता था 25,000 में सारे खर्चे हो गए, 50 कमाऊंगा मतलब 25 बचेंगे। ठीक है। देन यू स्टार्ट टू नो कि भाई आप कितने भी कमाओ बच तो नहीं रहे। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक्सेल करना है, और वो एक्सेल करने के अंदर ना सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, वो होती है आपकी पर्सनल प्रोफाइल। आपको खुद नहीं पता चलता कि यार आप किस तरीके से ग्रोम कर रहे हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनली आप किस जगह एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि 99% मुजना जफर से कोई भी बंदा मिलेगा वो डिजिटली मिलेगा,
फिजिकल तो बाद में शायद मिल सके, ठीक है। एंड Yeah. आई एम अ keen believer on that कि people will judge you by the cover of your book, ठीक है, कि आपकी प्रोफाइल कैसी दिखती है, ठीक है। अगर आप अभी अपनी प्रोफाइल में जो जो आपने चीज़ें डाली हुई लिंक्डइन में सब हटा दें तो आई एम प्रीटी मच श्योर पीपल वोंट सी यू फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग That's इज true. समथिंग जहाँ पे आप बताना चाहते हैं कि मुजनन जफर मैं हूँ, बेशक आप मुझसे भी मिले नहीं है लेकिन दिस इज माई शेडो लुक लाइक, ठीक है। एंड व्हेन यू मीट मी दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। हाउ मच यू थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इज, लिंक्डइन कितना बड़ा पार्ट अदा करता है, बिकॉज जेंजीज आर मोर टूवर्ड्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म। और मैं इसको गलत नहीं कहता, अगर आपको लगता है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए इंस्टाग्राम पर हो बहुत ज़रूरी है तो आप इंस्टाग्राम पर। माई ब्रदर इज ऑल्सो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म बिकॉज ही इज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। उसका 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 माइंड सेट, उसका बिजनेस मॉडल उस तरीके से होता है, ठीक है। मैं उसको पिछले 4 साल तक कहता रहा, जब उसको आज सही लगा तो वो खुद लिंक्डइन पर आया, एंड नाउ ही इज एंजॉयिंग इट। ही इज ट्राइंग टू, एंड क्योंकि ना स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं है कि करना कैसे, पर्सनल ब्रांडिंग पोस्टिंग कैसे करनी है, बट आप स्लोली एंड ग्रेजुअली सीखना शुरू होते हो, अच्छा यार इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से शोकेस करना होता है अपने आप को। बिकॉज मैं भी पहले ही सोचता था कि यार कौन लोग हैं जो तस्वीरें खिंचाते हैं इवेंट में जाके फिर तस्वीर डाल देते हैं, बट देन यू नीड टू रियलाइज कि अगर मैं किसी बंदे से पहली मरतबा मिलूंगा या मैं किसी की प्रोफाइल पर जा रहा हूँ तो मैं उसके बारे में राय या मैं कलेक्टिव पॉइंट क्या निकालूंगा कि अगर मैं इनसे मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ तो मेरे और उनके अंदर क्या सिमिलर है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आप नहीं देखते, आप किसी की प्रोफाइल में जाए आपको कोई ना कोई एक सिमिलरिटी मिलती है जो आपका आइस ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। तो True, हाउ that's true. हाउ इम्पोर्टेंट इज पर्सनल ब्रांडिंग फॉर यू एंड हाउ टू डू इट अकॉर्डिंग टू योर जनरेशन। Yeah, I think in the start of the call I did mention that it's really important because हर किसी का brand तो होता ही है. If you're not doing anything about it, then it's your fault because everybody has a personal brand. They have a unique identity, and I think it's just like putting it forth for other people to see. For example, मेरी तरह मतलब जो मेरी personality है उस तरह का copy paste तो कोई और नहीं होगा ना. So I think it's just that people need to realize this, and it's not rocket science. Everybody can do it, and I think everybody has their own journey, their different experiences that they can share. और आई थिंक आप इसी तरह से लोगों से रिलेट कर सकते हो. लाइक द अदर डे आई हैड अ कॉल, this virtual call with a girl from LinkedIn. I wouldn't have imagined that, but LinkedIn made it happen because, I clicked with her and then we spoke, and, we really thought that it was fun. We could relate to different experiences, and she's in London. I think she's in UK, sorry, and I'm in Pakistan, but we did connect. I think it's amazing that how virtual connections can, you know, come to fruition through platforms like LinkedIn. But I think वही चीज़ है कि personal branding really helps, and everybody should do it in this time and age, because if you're not doing it, then somebody else will. And बाकी मुझे यही लगता है कि everybody is talented, everybody has something to offer, but if you're not putting yourself out there, somebody else will come and take your spot. I mean, so it's just that I think you need to be out there, and then the luck factor also comes into play and stuff, but I think you need to do your work first to for the luck to come and play its part as well. Like you can't just sit there and थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि अभी आपने yeah, कॉल पे थोड़ी देर पहले बोला था कि लक होती है, बट लक के लिए होती है, काम करना पड़ता है। बिल्कुल होती है, पर उसके लिए काम काम करना ग्राउंड वर्क होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि आप बस ऐसे लकी नहीं हो जाते बैठे बैठे. मैं बोलूँ कि अब ओ मेरे पास कोई अमेजिंग जॉब ऑफर आ जाए विदाउट अप्लाइंग और विदाउट इवन बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, बिकॉज आई थिंक आप चीजें ग्राउंड वर्क करते हो एंड देन इट हैपेंस. सो हाँ, हाँ, फॉर आपको खुद पता नहीं चलता कि वो चीजें हेल्प आउट कर रही होती हैं। एग्जैक्टली पीपल यूजुअली नो से वन कर हम नोस. बैठे हुए हैं और एकदम से कॉल आ गई, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता, आप वो देख स्लोली कर एंड आता. ग्रेजुअली कुछ ना कुछ कर रहे होते हो और वो आहिस्ता आहिस्ता करते I कुछ mean, सालों बाद आपकी प्रोफाइल पर। yes. And because I've started posting in this last quarter on LinkedIn, so everybody, like, my DMs are literally filled with job offers right now. And I was like discussing with my manager the other day as well, that it's happening, but it's just it's not that, it's not something that I applied for, but I'm getting it because people are seeing that, okay, this person is putting stuff out there, this person is actively participating in events or doing stuff. So I think people do notice that. We don't see that. We think that nobody is पीपल नोटिस posting एवरीथिंग। this and that, but they do. I think, and everybody should leverage it. I think it's free. So why are you not using it? I mean, पीपल please, पीपल guys, post आई on LinkedIn.
I personally believe people notice everything, okay? And there are companies, there are people who want to have good people in their companies, okay? Um, and reaching out to people is not like कि आप हर किसी के पास जाएं, ठीक है? आप अपने बारे में बताएं. You never know how it will connect, ठीक है? True. Throughout my 7 years of my experience, मैंने आज तक किसी भी इंसान को सीवी नहीं भेजी, एक भी जगह, ठीक है? ऑल्दो कि मैंने सीवी लिखवाई भी है, मैंने बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं, ठीक है? शी इज़ अ वेरी गुड इन राइटिंग सीवीज़ एंड ऑल, ठीक है? बट मैंने आज तक कहीं भेजी नहीं, मतलब किसी को ज़रूरत ही नहीं, बट हो सकता है भाई मेरी किस्मत ऐसी हो, लेकिन आई डोंट सेंड सीवीज़, मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं, बड़ी ऑफ़र सामने से आ जाती हैं, तो मैं कुछ सही कर रहा होता हूँगा या वो कुछ सही कर रहे होते होंगे, बट दैट्स द सेम पॉइंट. सो I think we discuss a lot of good pointers, Muzna. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Just for the audience, if you want to reach out to Muzna, you can reach out to Muzna on LinkedIn. And I'm pretty much sure we discuss a lot of good pointers so people will learn and Yeah. understand that. So thank you so much, Muzna. ख्याल Thank you रखिएगा. so much.